Friends, my this vlog will be in both languages, English and Urdu. Those friends who cannot understand English, they can watch in Urdu, and those who cannot understand Urdu, they can watch in English. So both languages people can benefit from this vlog, and it will be very informative for you, inshallah. Hi guys, hope you all are fine. Today I am going to talk to you about the plant of basil. You can see at my back, this is basil plant, and in Urdu the name is tulsi or niazbo, and in Arabic we call it rehan. This is plant is very beneficial. It has many benefits, and this plant is connected with the family of mint, and it has so many things in it, like vitamin A, vitamin K, iron, calcium, and beta carotene, and menthol oil also made by this plant. And in India, this plant is a symbol of hospitality, and in Italy this plant is the symbol of love. So this plant has many benefits. Guys, आज हम बात करने जा रहे हैं तुलसी के बारे में, जिसको नियाज़बो भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको बेसल कहते हैं, अरबिक में इसको रेहान कहा जाता है। आप मेरी बैक पे देख सकते हैं, मेरे पीछे जो लगा हुआ पौधा है ये रेहान यानी तुलसी नियाज़बो बेसल का पौधा है। ये बहुत ही इसके बेनिफिट्स हैं, इसको बहुत ही तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है, और इसका ताल्लुक़ पुदीने की फैमिली से है। इंडिया में इस पौधे को सिंबल माना जाता है मेज़बानी का, और इटली में इसको लव सिंबल माना जाता है। इवन इंडिया में इसको होली तुलसी भी कहा जाता है। इसकी बहुत सारी किस्में हैं, इसकी ऑलमोस्ट 60 टाइप्स हैं, जिनमें से कुछ टाइप्स के बारे में मैं आपको नाम बता देती हूँ। इसको लेमन तुलसी भी कहा जाता है। इसकी टाइप्स हैं, यानी इसी को नहीं कहा जाता, बल्कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक स्वीट तुलसी है, लेमन तुलसी, थाई तुलसी, इटालियन तुलसी, लोटस लीव तुलसी, होली तुलसी, और करली तुलसी। Guys, there are so many types of basil. Almost it has 60 types. Some types I will just mention the names: sweet basil, and lemon basil, and Thai basil, Italian basil, lotus leaf basil, curly basil, and holy basil. इसी पौधे से menthol oil भी बनता है। Guys, you can see this plant, and you can understand and you can recognize the shape of the leaves, and these leaves has very nice smell, very nice smell. So just see it, and after that I am going to discuss with you about the benefits of this plant. तो फ्रेंड्स, आप इस पौधे को देख लें अच्छी तरह से, और इसके पत्तों को देखें कि इसकी क्या शेप है। अगर आप इसको हाथ में थोड़ा सा मसल लें तो इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू है, बहुत प्यारी खुशबू है इसकी। आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इसके फ़ायदे। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या है और ये किस किस चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है। तो आप इसकी शेप देख लें गाइस, ये है पौधा। और गाइस, दिस इज़ द प्लांट ऑफ बेसल, एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द बेनिफिट्स ऑफ बेसल। Basil is a food for digestion. It is anti-inflammatory. It fights free radical activities. It has skin benefits, and if you want to get these skin benefits, you can make a paste with the basil leaf, and you have to add sandalwood and little rose water, and apply this paste on your face and let it sit there for 20 minutes and wash it off with the cold water, and you can see the difference of your skin. It can fight against depression, and it can manage the diabetes. It supports liver function and helps detoxify the body. It promotes healthy guts. It has strong medical and healing properties. It is anti-aging, and it improves the mental health. It has calcium, vitamin K, vitamin B, vitamin A, iron, and essential oils in it. It can be used for the treatment of snake bite, cold, and inflammations with the nasal passages. It helps to prevent certain types of skin, liver, oral, and lung cancers. And basil extract
can be used in skin creams. It might improve skin hydration and reduce roughness and wrinkling of the skin. It helps to reduce high blood pressure. It can reduce cholesterol and triglycerides. It can reduce some risk factors of cardiovascular diseases. It prevents diarrhea. It relieves sting wound like bee bite, insect bite, or insect sting. You can rub these leaves on the affected area and swelling and wounds. It can be cured with this. It can treat ear infection. It can treat fungal infection. It maintains strong bones and teeth. It improves the vision. So guys, you have seen how many बेनिफिट्स. गाइस देखें, ये मैं आपको बताया था कि इसके वायलेट कलर के फ्लावर्स होते हैं. तो ये देखें, मैं दूसरे पौधे के पास आई हूँ जिसके साथ ऑलरेडी फ्लावर्स लगे हुए हैं. आप इसके फ्लावर्स देखें, कुछ वाइट हैं बीच में और कुछ वायलेट कलर के हैं. गाइस, यू कैन सी द फ्लावर्स ऑफ बेसिल प्लांट. This plant has already grown up and there are very small white color flowers and in between the violet color, and you see how nice it looks. This is also basil plant with the flowers. Guys, ये है basil plant और अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इसके क्या क्या फ़ायदे हैं. जिन लोगों को हाजमे का प्रॉब्लम होता है, अक्सर उनका खाना हज़म नहीं होता, उनके लिए बेसल लीव्स बहुत ही मुफीद हैं. ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं. आपके जिस्म में कहीं भी सोजन हो, लेप बनाएं और उसके ऊपर लगाएं और उससे फ़ायदा उठाएं. इसके अलावा आपके लिवर डिजीज़ के लिए ये बहुत अच्छा है. आपकी एंटी एजिंग है, एज के लिए बहुत अच्छा है. मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है. अपनी मेमोरी को बढ़ाएं, इसको खाएं और इसको इस्तेमाल करें. इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है. आप इसकी चटनी भी बना सकते हैं. आपको डिफरेंट तरीक़ों से इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं बाद में बताऊंगी. फ़िलहाल मैं आपको इसके फ़ायदे बता रही हूँ. आप इसको अगर स्किन के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसका लेप बनाएं. इसमें थोड़ी सी सैंडलवुड डालें और इसमें रोज़ वाटर डालें और इसका पेस्ट बनाएं. पेस्ट बना के आप इसके अपने फेस पे लगाएं और 20 मिनट के लिए आप इसको भूल जाएं. आफ्टर 20 मिनट आप ठंडे ठंडे पानी से मुंह को धोएं और आप देखें कि आपका चेहरा कैसा फ्रेश होता है और कैसा ग्लोइंग होता है और आपके जो भी निशान मार्क्स हैं चंद दिन इस्तेमाल करने से वो सब जाते रहेंगे. इसके अलावा अगर सांप काट जाता है किसी को या किसी किस्म की कोई जैसे जहरीली मक्खी या किसी किस्म का कीड़ा पतंगा आपको काट जाता है तो उसके ऊपर भी इसका लेप लगाएं, उस स्वेलिंग के ऊपर, उस वुंड के ऊपर, तो वो भी बड़ी जल्दी हील हो जाएगा. जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है वो इसको यूज़ कर सकते हैं. ब्लड प्रेशर के लिए ये बहुत अच्छा है. शुगर के मरीज़ों के लिए ये बहुत अच्छा है. इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड को ये कम करता है. कार्डियोवास्कुलर जितनी भी डिजीज़ हैं उनको ये ठीक करता है. जिन लोगों का पेट ख़राब है उनके लिए ये बहुत अच्छा है, उनके पेट को ये ठीक करता है. इसके अलावा किसी किस्म का आपको हेडेक है तो सर में दर्द है, उसके लिए ये बहुत अच्छा है. आपके सर के दर्द में आपको आराम देगा. इसके अलावा और ये कान के दर्द के लिए बहुत अच्छा है. फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करता है क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल भी है. इसलिए किसी किस्म का भी आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन है किसी भी जगह उसको ठीक करेगा. आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके दांतों को मजबूत करेगा और आपको ये जो जॉइंट पेन है उसको रिड्यूस करेगा. तो गाइस देखें कि इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं. और अब आपको मैं बताती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है. सबसे आसान जो इसका तरीका है यूज़ करने का वो तो चाय का है. आप जैसे ही चाय बनाते हैं उसमें चंद पत्ते जो है ऐसे तोड़ें, चंद पत्ते तोड़ें, चाय में डालें और उसको चाय बना लें. और इसके अलावा जो आप इंग्रेडिएंट चाय में उसमें डालना चाहते हैं, आप इलायची और सब्ज़ इलायची और दारचीनी और अपनी मर्ज़ी से आप उसमें अदरक कुछ भी ऐड कर सकते हैं. तो फर्स्ट तो ये मैंने सबसे इजी तरीका जो आपको बताया चाय का बताया है. इसके अलावा आप इसको चॉप करके इसके पत्तों को पिज़्ज़ा के ऊपर भी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं. और इसके अलावा अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं आप टमाटो स्लाइस बनाएं, उसके ऊपर इन पत्तों को डालें और आप सैंडविच में इसको यूज़ करें. और फिर आप इसके सूप, किसी भी किस्म का आप सूप बना रहे हैं उसमें इनको यूज़ कर सकते हैं. आप किसी किस्म की सॉस बना रहे हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं. आपको पता है कि पुदीना, धनिया, अनारदाना, इस किस्म की जो चटनियाँ होती हैं आप पुदीने की जगह आप इसको डाल सकते हैं. बेसल को ये क्योंकि ये भी पुदीने की फैमिली से ही इसका ताल्लुक़ है. तो ये चटनी आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी, बहुत अच्छी साबित होगी और आप इसको यूज़ करें. इसके अलावा आप चिकन चिली विद फ्राइड बेसल
यूज़ बना सकते हैं। ये भी एक डिश है। आप फ्रेश बेज़ल पेस्टो सॉस बना सकते हैं इससे, और आप पास्ता में इसको यूज़ कर सकते हैं। आप दाल विद बेज़ल लीफ बना सकते हैं। आप टेंगी टमाटो राइस विद ट्विस्टेड बेज़ल लीफ ये भी आप बना सकते हैं। ये बहुत सारी ऐसी डिशेस हैं जो कि आप बेज़ल से तैयार कर सकते हैं। तो गाइस आप इसको यूज़ करें, इसका फ़ायदा उठाएं। ये बहुत ही बेनिफिशियल पौधा है और आपको बहुत सारी जगहों पे ये पौधा मिल जाएगा। ख़ास तौर पे अगर आप किसी भी इंडियन फैमिली को जानते हैं, उनके घर की तरफ जाएं, आपको हर घर के आगे ये एक पौधा नज़र आएगा, क्योंकि इंडिया में इस पौधे को बहुत ही होली समझा जाता है। एग्जैक्टली ये जो पौधा है ये शायद ना हो, लेकिन इसी की एक टाइप है, क्योंकि बेज़ल की बहुत सारी टाइप है। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट इसकी 60 टाइप्स हैं और डिफरेंट टाइप के बेज़ल्स होते हैं, और इसके अंदर जो फूल लगते हैं वो भी मैंने आपको तस्वीर बना के इनकी दिखा दी। आपको इसमें वाइट वाइट थोड़े थोड़े नज़र भी आ रहे हैं। इसके एक्चुअली डिफरेंट कलर्स के फूल भी होते हैं, डिफरेंट कलर का जो बेज़ल होता है। इसके वायलेट कलर के इसके साथ फूल होते हैं और बीच में इसके छोटे छोटे वाइट फूल भी होते हैं, और इसका जो बीज होता है उसको हम तुखम मलंगा कहते हैं। और आपको पता होगा कि तुखम मलंगा क्या है, क्योंकि गर्मियों में हम सब जो है वो डिफरेंट काइंड के जो बेवरेजेस वगैरह बनाते हैं, जूसेस बनाते हैं, उसमें हम तुखम मलंगा भी डालते हैं। तो बहुत से लोग इससे वाकिफ़ होंगे। तो गाइस आपको ये जितने भी मैंने आपको फ़ायदे बताए हैं और बेज़ल के बारे में मैंने आपको बताया है, आप इसको यूज़ करें, इससे फ़ायदा उठाएं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो डायरेक्ट आप तक पहुंचे। एंड थैंक यू वेरी मच वाचिंग माय व्लॉग। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। गाइस तुलसी के बारे में मैंने आपको इसके पौधे की शेप बताई, इसके फूलों के बारे में बताया, इसके बीज के बारे में बताया, इसके बेनिफिट्स बताए, इसकी कैसी लुक है ये बताया, इससे क्या क्या डिशेस बनाई जाती हैं वो बताया। अब मैं एक और बात मेंशन करना चाहती हूँ कि हमारी इस्लाम में भी ये एक होली प्लेस ही रखता है, क्योंकि ये जन्नत का पौधा है। तो इसलिए कहा गया है एक हदीस में कि अगर आपको कोई रेहान दे तो आप उसको लेने से इनकार ना करें। तो इसलिए ये मज़हब इस्लाम में भी ये उतना ही होली है जितने दूसरे मज़ाहिब में। ओके गाइस, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। बाय बाय।